डॉक्टर सर गुड मॉर्निंग। विनय जी गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है सर? एकदम क्लियर। जी सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? Good morning, Max. Can you hear me? Good morning, Ajit. Loud and clear. Absolutely. Thank you. नहीं ले लिया।
मैक्सवेल सर 1 मिनट होल्ड कीजिए, बताता हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, मैक्सवेल सर हाँ जी, कर सकते हैं। स्टार्ट करूं? यस सर। On behalf of the Sports Authority of India and the Cycling Federation of India, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है आज का ई पाठशाला ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप सबके क्वेश्चंस, आप सबके डाउट्स इस प्लेटफॉर्म पे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, आपका नॉलेज ऑन साइकिलिंग इंप्रूव कर सकते हैं। और हमारे पास हमारे टीचिंग पैनल में हमारे जो रिसोर्स पैनल है, हमारे पास बहुत ही अच्छे टीचर्स है। ये लोग जो है दे आर हाईली डेकोरेटेड not only in the area of qualification, but they are also decorated as past cyclists, national and international level. तो आप ये मौका लेना चाहिए. You should take an opportunity and take all that is taught to you from this platform and ask your questions. I request all of you, please ask the questions. जो questions इस आज के topic से related है, वो questions आप आज पूछिए. और उसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चंस है तो आप कल के लिए रखिए, क्योंकि कल का जो प्रोग्राम है वो कल ही क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है at 11 to 12 o'clock tomorrow. So I have the pleasure today of introducing Sri Ajit Singh. Ajit Singh is today's teacher. He is teaching on fatigue and recovery. Ajit Singh is a commandant in the BSF. He is a member of the TIDC. He is a national and international commissioner. He is an NIS certified coach, not only certified by the NIS, he was an NIS topper as well. We have some great toppers in our panel. He is a UCI level 2 certified coach. He was an international cyclist in his time, represented India in the 1990 Asian Games, other Asian championships. He was also the national champion in the sprint. He has 2 international medals to his name, 1 gold and 1 bronze. He has many other medals at the national level. He also has the dubious distinction, I call it the double distinction, of being a 5-time national champion in the triathlon. He has been a 5-time national champion in the triathlon, and he was an excellent cyclist. His knowledge on the subject is really wonderful. I urge all of you to take this opportunity and learn from him. Ajit Singh comes from a family of cyclists. His father was an Olympian cyclist who represented India in the 1964 Olympics. Sri Sucha Singh ji, I think his name will ring a bell when I say Sri Sucha Singh ji. I think all the people in connection with cycling, it will ring a bell. He was an Olympic cyclist who represented India in the 1964 Olympics. I urge all of you to come on this platform, receive the good teaching of today. Fatigue and recovery is not only for sportsmen and cyclists. As I earlier said, in day-to-day life, we go through fatigue and we need to know how to recover from that. So today, I welcome Sri Ajit Singh ji to take over and share his knowledge and experience on this topic and the subject. Sri Ajit Singh ji, please take over. Hello, good morning, everybody. Thank you, dear Dr. Maxwell, for a wonderful and very elaborate introduction. I owe you. And thanks, CFI Cycling Sports Authority of India, for giving me this opportunity to share my knowledge with fellow cyclists. मैं अपने जितने साइकिलिंग
फैमिली के जो भी ग्रास रूट लेवल पे हैं, एलिट लेवल पे हैं, कोई भी, इन सब से जो भी मेरे पास में थोड़ी बहुत छोटी नॉलेज है ये शेयर करना चाहता हूँ, और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें सो दैट आई लर्न मोर एंड शेयर मोर. So let's start with our lecture, which is on fatigue and recovery. Actually, lecture was on recovery and recovery ride, but I added this fatigue so that you should understand why recovery is needed. So that is why I added fatigue. And let's start with the lecture. तो आज का हमारा लेक्चर है फटीग एंड रिकवरी. तो फटीग है क्या? व्हाट इज फटीग? इन लिटरल बेसिक सेंस, इफ वी से, इट इज इनएबिलिटी टू कंटिन्यू विद एन एक्टिविटी एट द सेम इंटेंसिटी. मतलब कि जो आप कर रहे थे, जो एक्टिविटी आप कर रहे थे, जिस इंटेंसिटी पे आप कर रहे थे, उसको आप उस इंटेंसिटी पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट एक्चुअल फटीग इज. And here people confuse fatigue with you can say exhaustion. Exhaustion is something which accumulates and causes fatigue. We will talk about it later. और ज़्यादा इसको scientific ना करते हुए, I'll try to keep it simple. So fatigue can be further classified. हम इसको अलग अलग उसमें जनरलाइज कर सकते हैं, लाइक लोकल फटीग, जनरल फटीग एंड क्रॉनिक फटीग. अब ये है क्या? लोकल फटीग इज एसोसिएटेड विद सोरनेस. जो अब हम कभी जोर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, उस समय जो मसल्स में एक जलन, एक जो पिंच करता है मसल्स को, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेशन. और उस समय जो हम अपना जो भी ताकत लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे को थकान या वो जो फील होता है उस समय, दैट इज लोकल फटीग. जनरल फटीग, जनरल फटीग है वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सेशन एंड कोई आज लंबा राइड था आपका 100 किलोमीटर का, 100 प्लस, आपने 2-3 घंटे राइड किया है, एंड आफ्टर दैट जो हम थकान फील करते हैं, दैट इज जनरल फटीग. एंड क्रॉनिक फटीग, दिस इज डेंजरस. क्रॉनिक फटीग क्या है? लॉन्ग टर्म फटीग, जो ओवर टाइम एक्यूमुलेट होता है. दिस इज सीरियस. इसी से बचने के लिए जो वो रिकवरी वाला पार्ट है, जिसपे हम आगे बात करेंगे, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉनिक फटीग. इट इज बेस्ड ऑन लॉट ऑफ रीजंस के ये क्यों होता है. मेन इज इनसफिशिएंट रिकवरी, जो सबसे बड़ा कारण है इसका. तो इसीलिए जो भी ट्रेनिंग प्लान या ट्रेनिंग आप करते हैं, उसमें रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू इम्प्रूव, यू ग्रो, यू परफॉर्म ओनली आफ्टर यू हैव सफिशिएंट रिकवरी एंड रेस्ट. ये मेरे अदर पैनलिस्ट जो हैं, जिन्होंने क्लासेस ली हैं, उन्होंने भी इस चीज पे आपको बताया है पीछे क्लासेस में. वीएन सर ने, मैक्सवेल सर ने, पॉवल सर ने इसके ऊपर में बार बार बोला है, और ये बहुत जरूरी है. यू शुड अंडरस्टैंड दिस. रीजंस क्या क्या हैं फटीग के? डिहाइड्रेशन, स्लीप, डाइट, न्यूट्रिशन. फिर फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में मतलब कि जैसे एनीमिया है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, किसी को डिप्रेशन है, तो उसकी वजह से आप जल्दी वो फटीग फील करते हैं, या मेडिकेशन ले रहे हैं उसके लिए. एलर्जीज हैं जो, जिनकी वजह से आप मेडिकेशन ले रहे हैं. बहुत सारी मेडिकेशन हैं जो आपको जल्दी थका देती हैं, या दे मेक यू फील, बिकॉज उसमें क्या है कि मेडिकेशंस वांट यू टू काम डाउन, वांट यू टू रेस्ट. तो उसमें आप एक्सर्शन करते हो, तो दैट वे यू फील फटीग. एंजाइटी, जैसे सपोज कल आपका कंपटीशन है, आज पूरा कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, तो आप जो भी थोड़ा करते हैं, कल का सेशन हार्ड होने वाला है, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मतलब इस तरीके की सोच है. देन इज ओवर ट्रेनिंग. ओवर ट्रेनिंग के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे. मोनोटनी इन ट्रेनिंग,
मोनोटनी, आप डेली वही सेशन, उसी टाइप के सेशन रिपीट कर रहे हैं ओवर एंड अगेन। इस चीज को कोचेस जो है यहाँ पे दे शुड अंडरस्टैंड के दिस लीड्स टू मेंटल फटीग। फिजिकल फटीग तो होता ही है आप जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे, बट मेंटल फटीग भी है जो रिजल्ट्स इनटू मोर फटीग। अब जो सबसे बड़ा कारण फटीग का है स्लीप और इनकी वजह से और ट्रेनिंग की वजह से जो कॉज होता है, मैं इसलिए डिहाइड्रेशन के ऊपर में थोड़ा अलग से ले रहा हूँ, बिकॉज दिस इज कॉज ऑफ योर ट्रेनिंग। जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपको फटीग फील हो रहा है उसके कारण जो है दैट इज बेसिकली डिहाइड्रेशन। हम बहुत लंबी ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे साइकिलिस्ट देखे हैं जो बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, 2-2 घंटे राइड करेंगे लेकिन पानी नहीं पिएंगे। तो दिस लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग वर्किंग इन हॉट वेदर, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉडी में पानी की कमी की वजह से हमारा जो सिस्टम है, क्यों देखिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन आपके मसल्स में या जो भी है वो कहाँ से आ रही है? दैट इज थ्रू ब्लड। अब जब आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है दैट मीन्स आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है, आपका बॉडी का जो वाटर लेवल है, हमारी बॉडी 70% पानी है, तो वो लेवल कम होने से हमारा वो जो लेवल है वो आगे आगे हमारे को थका देता है, बिकॉज बॉडी का अपना सिस्टम है सिक्योर सिस्टम कि हमें इसको खराब नहीं होने देना। क्या है उसका प्रोसेस? रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड बॉर्न फ्यूल्स। जो भी हमारे फ्यूल मतलब जो भी हमारा ग्लूकोज है, मिनरल्स हैं जो मसल्स को उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है, दे गो टू मसल्स थ्रू ब्लड। ऑक्सीजन है मसल्स के लिए, जो कंबशन जो हमारे मसल्स के अंदर में फ्यूल का होता है, जैसे गाड़ी के इंजन में पेट्रोल बिना हवा के नहीं हो सकता है, सिमिलरली ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय होमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। तो जब जैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा पसीने और उसकी वजह से कम हो जाएगा तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड वी फटीग मोर अर्ली। उसकी वजह से यू कैन सी दैट कंप्लीट लिस्ट नीचे जो उसका फ्लो चार्ट है, क्या है? रिस्ट्रिक्ट ब्लड प्रोड्यूस कैन, हीट कैन नॉट एस्केप। अब हीट कैन नॉट एस्केप मतलब जैसे हम एक्सरसाइज जब भी करते हैं तो हमारे बॉडी का कोर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय ब्लड, बाय सप्लाइंग ब्लड टू आवर पेरिफेरल पार्ट्स, जैसे स्किन में जो पसीना आता है हमारे को। और जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मसल्स, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं साथ में, तो क्या होगा? हमारा अब ब्रेन यहाँ पे सोचने लगेगा कि मेरे को प्रायोरिटी किसको देनी है, हीट डिसिपेशन को देनी है, मतलब हीट जो हमारी एक्यूमुलेट हो रही है उसको देना है, या जो हमारे मसल्स काम कर रहे हैं उनको देना है, या और इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, बिकॉज उनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए आगे काम करने के लिए, कि वहां देना है। तो वो तो बिल्कुल बंद नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? आपका जो स्किन को सप्लाई जा रही है वो कम हो जाएगी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? आपको थोड़ी देर, जब आप बहुत देर एक्सरसाइज करेंगे, शुरू में तो पसीना आएगा, थोड़ी देर पसीना आना बंद हो जाता है। दिस इज वेरी डेंजरस, दिस कैन लीड टू हीट स्ट्रोक। जो हीट स्ट्रोक होता है उसमें यही होता है कि आपकी बॉडी इतना गर्म हो जाता है कि उसकी थोड़ी देर के बाद में मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्किन के साथ में बंद हो जाता है, तो आपको पसीना आना बंद हो जाएगा एंड दिस विल लीड टू हीट स्ट्रोक। आपको चक्कर आएगा, गिर जाएंगे आप। बहुत सारे लोग जैसे धूप में बहुत देर खड़े रहे, कईयों को चक्कर आके गिर जाता है, उसका और भी कारण है, बट वन ऑफ इज दिस causes heat is a byproduct of energy production। कुछ भी कहीं पे भी जब एनर्जी एक्सचेंज होता है तो हीट उसमें प्रोड्यूस होती ही होती है। तो ये जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताया वो यही है। जो स्वेट में हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम। सोडियम नमक जो होता है, पोटेशियम दूसरा फॉर्म है नमक का। तो ये सारी चीजें वो हो जाती हैं। और थर्मो रेगुलेशन इज वही जो कोर टेम्परेचर हमारा अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है एंड हमारे फिर अल्टीमेटली बॉडी लॉकडाउन एंड यू आर फिनिश्ड। तो अब इन चीजों से हम बचें कैसे? नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज रिकवरी। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आप इम्प्रूवमेंट अपनी साइकिलिंग या उसमें चाहते हैं, किसी भी गेम में फॉर दैट मैटर,
यू नीड रिकवरी। आप जो भी ग्रो करते हैं, जो भी आप इम्प्रूव करते हैं अपनी उसमें, दैट इज व्हेन यू रिकवर। रिकवरी यहाँ पे मैं आप बताना चाहूंगा, रिकवरी और रेस्ट आगे अभी उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो रिकवरी की हैं। हाइड्रोथेरेपी है जो पानी के साथ वो किया जाता है। एक्टिव रिकवरी इज व्हेन यू एक्सरसाइज एंड रिकवर। स्ट्रेचिंग है, कंप्रेशन गारमेंट्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें पहले ही बताई हैं एंड स्टिल वील टॉक अबाउट इट। हम मेन फोकस विल बी ऑन एक्टिव रिकवरी। प्रिंसिपल्स क्या है रिकवरी के कि हमें ये जरूरी क्यों है। जो भी ट्रेनिंग हम जो भी शरीर को लोड दे रहे हैं उसका फायदा हमारे को जब हम रिकवरी करते हैं तब होता है। हाउ? बिकॉज हमारा शरीर उस ट्रेनिंग को अडेप्ट करता है। मतलब हमारी बॉडी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे कि हम इसको जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम उसको कष्ट देंगे, ये उसी हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जब आप कुछ नहीं करते, रेस्ट करना शुरू कर दो, थोड़ी दिनों में हमारे को वही अच्छा लगने लगता है एंड वी स्टॉप डूइंग इट। बट वंस यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग तो आपको खुद अच्छा लगना शुरू होता है धीरे धीरे। एकदम एक दिन पहले दिन से नहीं लगेगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट इज अडेप्टेशन इज। दैट इज व्हेन योर बॉडी स्टार्ट अडेप्टिंग टू योर एक्सरसाइज। अब वो लेकिन तभी होगा जब आप रेस्ट करेंगे, रिकवरी लेंगे, रिकवरी प्रॉपर प्लानिंग तरीके से लेंगे। ऐसे नहीं है कि रिकवरी हम बिना सोचे समझे भी हमने आज कर लिया है। रिकवरी दैट हैज टू बी प्लान इन योर ट्रेनिंग प्लान प्रॉपरली। अब ये बिल्कुल एक सिंपल आपको ग्राफिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपने शुरू में है ट्रेनिंग लोड लिखा है। व्हेन यू गिव अ लोड योर बॉडी फटीग्स, तो हमारा जो उस टाइम परफॉर्मेंस लेवल है या फिटनेस लेवल है दैट गोज डाउन। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर ने कुछ एक्सरसाइज की है, कुछ वो किया है। बट वी गिव टाइम एंड वी रिकवर। फिर दोबारा हम लोड देते हैं एंड फिर हम उसको रिकवरी देते हैं एंड दैट वे वी इम्प्रूव अ परफॉर्मेंस। इट्स लाइक जैसे हम क्लास में स्कूल में बच्चों को ना कोई एक टॉपिक दें, पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, और उसको कोई भी है, आज हमने उनको कुछ नया टॉपिक पढ़ाया, उनको टाइम दिया कि आप इसको याद करके आओ, एक दिन दिया, फिर अगले दिन नया टॉपिक पढ़ाया, फिर उनको टाइम दिया कि आप इसको याद करके आओ। तो दैट वे वो उसने जो पढ़ा है वो उसको एक्यूमुलेट करता रहेगा। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम डेली उसको नया नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसको याद करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, कि हम उनको डेली नया नया लोड दे रहे हैं एंड वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम दैट लोड। तो उससे क्या होगा? वो जो उसने पहले पढ़ा था या जो उसने पहले ट्रेनिंग किया था, he won't able to adapt to that training and the fatigue from that will start accumulating। तो क्या होता है कि आप उसको जब एक हफ्ते के बाद में या 15 दिन के बाद में आप पहले दिन का कुछ पूछेंगे तो he won't remember। आई एम जस्ट रिलेटिंग दिस ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या, ये जो नेगेटिव फटीग है क्या है। मैं उसको आपको आपके जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं उससे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने आज कुछ पढ़ा, आपको सफिशिएंट टाइम मिला उसको याद करने का, फिर आपको नई चीज सिखाई गई, फिर आपको सफिशिएंट टाइम दिया याद करने का, तो आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। दैट वे मतलब जैसे आज आपने कुछ ट्रेनिंग की, आपको प्रॉपर रिकवरी दी, फिर नया लोड दिया, फिर रिकवरी दी, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव उसमें जाएगी। लेकिन हम आपको डेली नया नया लोड देते रहे, प्रॉपर टाइम ना दें रिकवर करने का, मतलब कि आपको डेली नई नई चीजें पढ़ा रहे हैं और याद करने का मौका ना दें, तो क्या होगा? आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा लेकिन बहुत कुछ छूटता जाएगा। दैट वे योर परफॉर्मेंस विल गो डाउन व्हेन यू चेक दैट। तो इन सब चीजों का अगर हम जोड़ करें तो एक इन अ नटशेल दिस इज व्हाट हैपेंस। जो ये येलो लाइन है इसमें दिस इज योर परफॉर्मेंस। तो जैसे हम नीचे वाली लाइन में जैसे ट्रेनिंग लोड लिखा है, एज वी इंक्रीज द ट्रेनिंग लोड और हम उनको प्रॉपर रिकवरी और वो देते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर जाएगी। ऑप्टिमल ट्रेनिंग, ऑप्टिमल रिकवरी। वंस वी स्टार्ट गिविंग हिम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मोर देन व्हाट ही कैन रिकवर फ्रॉम, मतलब जो भी हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो रही है एंड बट वी आर टेकिंग हिम आगे, तो उससे क्या होगा?
अंडर रिकवरी होगी। ओवर रीचिंग इज कि जब हम उसको बॉडी को उस पर्टिकुलर सेशन से रिकवर होने से पहले नया लोड दे दें। दिस इज इनिशियल स्टेज। ये जैसे कलर भी दिया है ना, ये ऑरेंज एंड रेड, रेड लाइट और ऑरेंज अपना ट्रैफिक सिग्नल की तरह है कि पहला आपको कॉशन है ये। वंस ओवर रीचिंग इज कॉशन कि भाई आप जो आपने ट्रेनिंग की है आप इससे प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए हैं, तो ध्यान रखें इस चीज का। तो बट स्टिल योर परफॉर्मेंस विल गो डाउन। बट हम इस चीज को नहीं समझते हैं, नहीं देखते हैं। बहुत सारे हैं जो बच्चे कंटिन्यूस आज 100, कल 200, 300, आज 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर रिकवरी। उसके बाद में घर आके फिर अपने स्कूल का काम है और दुनिया भर के काम है, इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब यू आर नॉट गिविंग सफिशिएंट टाइम टू योर बॉडी टू रिकवर। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है बच्चों को कि हम जैसे ग्रुप में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि अब हमारे साथ में एक कोई अच्छा राइडर है और मैं थोड़ा नया हूँ और मैं उसको देख के उसके हिसाब से ट्रेनिंग करूंगा, तो मेरी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ टाइम तक तो जरूर जाएगी। बिकॉज जो नया होगा, जो भी अच्छा होगा, उसकी इनिशियल परफॉर्मेंस बढ़ेगी बिकॉज उसका जो लेवल था वो बहुत नीचे था। एंड जो ट्रेनिंग से बेनिफिट होना है वो कुछ तो मिलेगा, बट इट विल नॉट कैरी ऑन फॉर वेरी लॉन्ग। जो बर्नआउट होता है ना, दैट विल अकर। तो ये चीज जो कोचेस हैं या जो नए बच्चे हैं जो ग्रास रूट लेवल पे, जो बच्चों के लिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग करें, आप अपनी बॉडी की सुनकर ट्रेनिंग करें। अननेसेसरी दूसरों को देख के कि वो 3 घंटे कर रहा है, वो 4 घंटे कर रहा है, तो मैं भी उतना करूंगा। वो एक और बच्चों में वो है कि आज हमारी एवरेज स्पीड 35 थी, आज 38 थी। ये नहीं होना चाहिए। आपके शरीर को क्या रिक्वायरमेंट है, आप हर ये ट्रेनिंग जो है दैट इज इंडिविजुअली, उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग करो। नहीं तो क्या होगा, ओवर ट्रेनिंग होगा और थोड़े टाइम के बाद में जो ओवर ट्रेनिंग के इफेक्ट है उस वजह से क्या होगा, यू विल गो आउट ऑफ ट्रेनिंग। आप छोड़ दोगे, यार कोई फायदा नहीं हो रहा, मेरा इंप्रूवमेंट तो कुछ हो नहीं रहा। ऑल दीज थिंग्स कम इनटू माइंड। अब रेस्ट एंड रिकवरी दो चीजें हैं जो बहुत बार हम लोग इंटरचेंज या आपस में इनको एक जैसे समझते हैं, बट ये बहुत फर्क है। रेस्ट इज एक्चुअल, जो आपका अगर ट्रेनिंग सेशन में रेस्ट लिखा है तो दैट मीन्स रेस्ट, कि कुछ नहीं करना है आपने। ये नहीं है कि जी आज मेरा साइकिलिंग नहीं है आज, तो मैं चलो आज शॉपिंग कराते हैं, आज यहाँ घुमाते हैं वहां घुमाते हैं। नो, इफ यू वांट टू सीरियसली गेट इनटू साइकिलिंग या कोई भी गेम में, किसी भी गेम में जहाँ आपकी इंटेंसिटी और वो सारा मैटर करता है, अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो जो भी आपकी ट्रेनिंग आपके कोच ने प्लान किया है दैट विल गो हेयरवायर एंड यू विल नॉट गेट बेटर। रिकवरी इज एक्टिव रिकवरी, आई मीन कि जहाँ पे कॉन्शियसली आप बॉडी को एक्सरसाइज दे रहे हैं, बट जैसे कल पावले सर ने बताया जोन 1 या जो बिल्कुल इनिशियल बेसिक लेवल पे है, और एक सिर्फ जोन 1 ही है जो आप किसी के साथ में भी कभी भी कर सकते हैं, जो सबके लिए सेम है। तो उस स्टेज पे आप बॉडी को एक्टिवली मूवमेंट दे रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दैट वे आप मसल्स को मतलब स्टिमुलेट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को स्टिमुलेशन दे रहे हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। बेस्ट रिकवरी प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे हम रिकवरी अच्छी ले सकते हैं? जो यू नो दैट सेंसेशन व्हेन यू हैव you have bottomless power, breathing is deep, pushing hard feels so good. जब ये चीज आती है तो दैट मीन्स जो आपकी एक्सरसाइज है, जो भी आप वो कर रहे हैं, यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। तो ये इन चीजों के साथ में रिकवरी में जो हमने पहले भी देखा, पीछे जो वो थे पॉइंट्स थे सबने, न्यूट्रिशन, स्लीप, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर टाइम पे सोना, रेगुलर टाइम पे सोना। ये नहीं है आज 9 बजे सो रहे हैं फिर अगले दिन 11 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, मतलब ये सब चीज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, जो भी इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो होना चाहिए। एंड आई मस्ट टेल यू कि जो द सीक्रेट ऑफ द ट्रेनिंग डेज
तभी आप जो आपका जिस दिन हार्ड सेशन होगा ना, आप उसको अच्छे से कर पाओगे अगर आप प्रॉपर रेस्ट करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पोस्ट एक्सरसाइज न्यूट्रिशन, रिकवरी न्यूट्रिशन। अब आपने कुछ आज एफर्ट किया, एक्सरसाइज की, मैक्सवेल सर उस दिन जो न्यूट्रिशन मैडम ने लिया था, उनसे भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया था कि हमारे पास में अभी नेक्स्ट स्लाइड में है, 2 विंडोज हैं बेसिकली। तो इसमें उससे पहले कि जैसे अब हम कितने सेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली आप 2 या 3 टाइम वीक में कर रहे हैं, तो आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर योर रिकवरी। जो बंदा डेली ट्रेनिंग कर रहा है, दिन में 1 बार कर रहा है, तो उसे जो भी उसने एफर्ट किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद में ही शुड हैव प्रॉपर फूड। एंड a person who is exercising or doing activities more than once in a day, एक दिन में 2 सेशन, आपका सुबह भी है शाम को भी है, तो ही जो शाम को मतलब जैसे आपने सुबह 2 घंटे 3 घंटे की राइड की है, या कोई भी सेशन आपने जैसा आपका प्लान है वो किया है, और इवनिंग में भी आपका दोबारा सेशन है, तो जो आपका इन बिटवीन टाइम है, यू हैव टू हैव प्रॉपर रेस्ट। आई एम सेइंग रेस्ट, नॉट रिकवरी, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, सो दैट यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट सेशन। आपने सुबह 3 घंटे राइड करके एंड यू गो आउट फॉर शॉपिंग या कुछ और, आप इधर उधर घूमने चलो, मैं आज मेरा कुछ मार्केट का काम से मैंने नहीं किया, वो नहीं कर पाया, आपने अपना खाने को ओवरलुक कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट। कई बार ऐसा भी होगा कि आपसे सेशन ही कंप्लीट नहीं होगा अगर कोई हार्ड सेशन शाम को प्लान कर रखा है कोच ने। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड प्लीज डू नॉट मिस योर पोस्ट रिकवरी, पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी। अब जो पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी है, न्यूट्रिशन है, उसमें 2 विंडोज है हमारे पास में। वन इज फर्स्ट 30 मिनट्स वाला, आपने हार्ड लॉन्ग ट्रेनिंग सेशन को किया है, उसके विद इन 30 मिनट्स यू शुड हैव मोर कार्बोहाइड्रेट खाना, मतलब जो विच गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, जो इजीली डाइजेस्ट, बिकॉज आपका देखो बॉडी ने पहले ही बहुत सारा एफर्ट किया है, उसको रिपेयर करने में उसको मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है। उसके बाद में आप हैवी खाना खा लो, नॉन वेज, मीट, ये वो, मतलब जो चीजें जिनको डाइजेस्ट करने में शरीर को और ताकत लगानी पड़ेगी, यू शुड अवॉइड दैट। सेकेंड विंडो इज 2 to 3 आवर्स पोस्ट एक्सरसाइज, इसमें आप प्रॉपर अपना खाना खा सकते हैं, बट दैट मील शुड बी, और जो भी आपका न्यूट्रिशन आप लेना चाह रहे हैं, दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 आवर्स ऑफ दैट एक्सरसाइज। तभी आपको उस सेशन से जो आपने एफर्ट किया है उसकी रिकवरी के लिए, और उसमें जो आपने एनर्जी एक्सपेंड की है उसको रिकवर करने के लिए आपको उस खाने या उस फूड का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जो शॉर्ट इजी सेशंस हैं उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट व्हेन यू हैव हार्ड इंटेंस एंड लॉन्ग सेशन, देन यू शुड स्टिक टू दिस। तो हमारा मोटा मोटी क्या 30 मिनट्स वाली विंडो में क्या क्या चाहिए, हमें लेना चाहिए, फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन बट कम, maximum is start replacing your fluid, because whenever you exercise, whenever you have a long and intense session, maximum जो बॉडी का लॉस, बॉडी में एनर्जी लॉस होता है, दैट इज थ्रू फ्लूइड, पसीने से, एंड रेस्पिरेशन, जो हमारा जैसे हम सांस लेते हैं, सांस से भी हम जो एक्सपेल करते हैं, उसमें भी बहुत सारा हमारा वाटर कंटेंट निकलता है। तो फर्स्ट थिंग इज टू रिकवर दैट। ये नीचे कुछ फिगर्स दी हैं कि हाउ मच यू शुड टेक, जैसे 450 ml to 700 ml फॉर एवरी 500 grams ऑफ वेट लॉस, सॉरी फ्लूइड लॉस, ये बॉडी से आपका पसीना निकल रहा है, 500 ml जो भी निकल रहा है उसके लिए आपको इतना लेना चाहिए, टू रिस्टोर मसल ग्लाइकोजन एंड प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब कि जो अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है, दैट इज थ्रू ग्लाइकोजन। अब आप उस चीज को रिकवर नहीं करोगे, तो अब आपकी जो मसल्स में साइकोमेयर होता है, मतलब जो मसल के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन उसमें आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो दे ब्रेक,
मैंने वो डाला नहीं है, अदरवाइज यू वुड हैव सीन के हमारे जो मसल टिश्यूज इफ यू सी देम अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें बहुत डैमेज होता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे ना बहुत लड़ाई होने के बाद में जमीन की क्या हालत होती है, इस तरीके के हमारे मसल्स के अंदर क्या हालत होती है। दैट रिकवरी इज थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस। वो चीज मतलब हमारा डिले हो जाए अगर हम वो चीज नहीं करते हैं तो। और 2-3 जो विद इन 3 आवर्स वाला जो मैंने बताया था पोस्ट एक्सरसाइज, तो यू शुड कंटिन्यू विद योर रिकवरी न्यूट्रिशन बाय ईटिंग होल मील फूड, जिसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो है मतलब आप प्रॉपर। और विद इन नेक्स्ट जो आपका 2.5 आवर्स, मतलब पहले आधे घंटे में तो आपने फ्लूइड लॉस और वो सारा किया, उसके बाद में गिव सम ब्रेक, देन विद इन बट फिनिश योर प्रॉपर मील, बैलेंस्ड मील रादर आई शुड से, विद इन दैट फर्स्ट 3 आवर्स। तो और जिस दिन हम अगर सेशन जो भी कर रहे हैं, जैसे लास्ट में लिखा है आफ्टर सेशन ऑन अ हॉट डे इमीडिएटली कूल डाउन योर बॉडी, बिकॉज जो वो टेम्परेचर हमारा हाई रहेगा अपने गर्मियों के दिनों में, जैसे आजकल के मौसम में हम अगर एक्सरसाइज करके आते हैं या 2 घंटे की राइड करके आते हैं, एक तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है, दैट इन ह्यूमिड वेदर होता है। तो जैसे मैंने पहले जो बताया था आपको, थर्मो रेगुलेशन जो बॉडी का है, फ्लूइड लॉस मतलब वो कम हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए हम एसी में बैठे, ठंडा पानी डालें, सो दैट हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो कम होगा। तो हमारा जो भी हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उसमें सब में जो बॉडी की एनर्जी या ब्लड का जो फ्लो है दैट विल बी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। और जो अदरवाइज डिहाइड्रेशन थ्रू रेस्पिरेशन और वो सब हो रहा है, इवन दैट विल गो डाउन। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करते, आप नॉर्मल देखोगे, आप एक्सरसाइज करके आने के बाद में बैठे रहोगे तो भी आपको पसीना आता रहता है। क्यों? क्योंकि शरीर कोशिश कर रहा है अपने आप को ठंडा करने का। तो यू कैन यूज दिस एक्सटर्नल मेथड्स कि एसी में बैठना, ठंडा पानी डालना, और ये सारी चीजें करने से यू आर कंट्रोलिंग दैट। तो आपको जो वाटर लॉस इस वजह से हो रहा है बॉडी में, वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। एंड दिस विल इंक्रीज योर एपेटाइट ऑल्सो। आपको क्यों अब खाना खाने की इच्छा तभी होगी जब शरीर उस खाने को डाइजेस्ट कर सकता होगा। आपको बहुत बार लगता होगा कि आपने बहुत कुछ एक्सरसाइज भी किया लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही होती है। तो रीजन इज कि बॉडी इज नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दैट फूड। तो दैट इज व्हाई वो अपना उसका मैकेनिज्म है आपको मना करने के लिए कि भाई मेरे को खाना मत दो, क्योंकि मैं इस खाने को हजम नहीं कर पाऊंगा। तो आपको डिसइंटरेस्ट, आपको कितना अच्छा खाना उसने दे दें, आप नहीं खा पाओगे। So for that, your body should cool down first, so that other systems are ready for next thing, जो कि आपका डाइजेशन और वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं कि हमने एक्टिव रिकवरी या वो करनी कैसे है। जो हमारा जोन 1, जैसे कल बताया था, जोन 1 बेसिकली इज 50 to 60% ऑफ योर, आगे आपको भी दिखाता हूँ मैं, जो कल पावले सर ने बताया था, FTHR है, मतलब फंक्शन थ्रेशोल्ड हार्ट रेट है, ये LTHR भी बोलते हैं, लैक्टिक थ्रेशोल्ड हार्ट रेट, या FTP का 63%, जो भी द परसेंटेज चार्ट इज देयर। तो उसमें क्या है कि आपने जिस दिन हार्ड लॉन्ग सेशन या हाई इंटेंस सेशन किया है, उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट डे रिकवरी, आप कभी भी देखना, आपको कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके आते हैं तो उस दिन तो थकान वो होती है, बट जो टांगों में दर्द और ये सब 1-2 दिन के बाद में होता है। वो क्यों? जब बॉडी हमारी अपना रिकवर करना शुरू करती है, रिपेयर करना शुरू करती है डैमेज मसल्स और उनको, तो उस समय जो डैमेज हुआ है, इन्फ्लेमेशन उन मसल्स में होता है, वो इसीलिए वो उस टाइम दर्द करते हैं। तो उससे जो रिकवरी और वो करते हैं, उसको असिस्ट करने के लिए वी डू एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी इज थ्रू जोन 1 ट्रेनिंग, जहाँ पे यू आर नॉट पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर बॉडी, एक्स्ट्रा एग्जर्शन नहीं कर रहे हैं, so that your system is not diverted from
रीजनरेटिंग द मसल लॉस, या जो भी आपका मसल डैमेज हुआ है उससे डाइवर्ट ना हो जाए। जो लैक्टिक जो पेन हुआ कहते हैं ना, लैक्टिक एसिड की वजह से पेन हो रहा है, एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडोसिस। जब लैक्टिक एसिड क्लियरेंस बॉडी नहीं कर पाती है पूरा, तो हमारा जो सिस्टम है अंदर से एसिडिक होना शुरू हो जाता है, दैट गिव्स दैट बर्निंग सेंसेशन। तो वो उसको असिस्ट करने के लिए जब हम हल्की साइकिलिंग या जोन 1 में राइड करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बिकॉज व्हेन वी राइड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा मसल्स में, और उससे इट विल स्टार्ट क्लियरिंग दैट। तो दैट इज व्हाई जोन 1 राइडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपने हार्ड राइड किया है उसके नेक्स्ट डे यू हैव टू डू दैट, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। रूल ऑफ थंब फॉर एक्टिव राइड इज दैट 1 घंटा या उससे कम फ्लैट टेरेन और स्मॉल रिंग पे चलाना है। हमने बड़े रोड बाइक की बात कर रहा हूँ, उसमें बिल्कुल नहीं चलाना है, फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब और अगर मौसम बहुत गर्म है और प्लेजेंट नहीं है चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मौसम, तो नहीं बाहर जाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर तो उससे उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। आप बॉडी को रिकवर करने के लिए ले जा रहे थे बाहर, बट बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए, उस गर्मी को और उस चीज को जो अभी को टेम्परेचर और वो सारी बातें हम कर रहे थे, तो वो चीज हमारी फिर डाइवर्ट हो जाएगी। एंड ये उन लोगों के लिए है सेकंड पैराग्राफ जो एक्टिव लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि मैरिड हैं, फैमिली है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और या स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो जिन्होंने स्कूल भी ना, अभी आजकल तो बंद है स्कूल, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ जैसे जब आप स्कूल आपके शुरू हो जाएंगे, खुल जाएगा, तो आपको रेस्ट डेज को इम्पोर्टेंस देनी है। उसके अलावा क्यों रिकवरी राइड आप करना है, वो आपको उससे फायदा मिलेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेस्ट डेज की इम्पोर्टेंस जरूरी है, एंड यू हैव टू, ये आपके साइकिलिंग कैरियर में आगे लॉन्ग रन में आपको बहुत फायदा देगा। अब किस टाइप से हमने करनी है ये उसके लिए है, ये बिल्कुल क्लियर है। आप इसको गांठ बांध लो कि अगर आप रिकवरी राइड, प्रॉपर रिकवरी राइड नहीं करेंगे, अपने शरीर को रेस्ट रिकूप नहीं करेंगे, तो एक लेवल पे आने के बाद में यू विल नॉट इम्प्रूव एट ऑल। कुछ लोग, अब अगर मैं अपनी बात करूं और मेरे साथ में एक अभी नेशनल कैंपर के साथ में अगर मैं ट्रेनिंग करूं और सोचूं कि अब उसका एफर्ट लेवल और मेरा एफर्ट लेवल में जमीन आसमान का फर्क होगा। सिमिलरली एक नया बच्चा है जो बिल्कुल अभी जिन्होंने साइकिलिंग शुरू की है, वो और एक जो 4-5 साल से साइकिलिंग कर रहा है, दोनों के एफर्ट लेवल में हो सकता है दोनों सेम पेस पे चला रहे हों, लगे कि भी अगर उसको भी रिकवरी सेम से मिल जाएगी और मेरे को मिल जाएगी, नहीं। मैंने जैसे पहले बताया है, इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड लिसन टू योर बॉडी कि मैं जो भी एक्सरसाइज या जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो मेरे शरीर, मेरे को कैसा फील हो रहा है। तो आपको और ये जो रिकवरी है दैट विल ओनली ऐड टू योर परफॉर्मेंस, और ये जो भी आपके एक्सरसाइज का अडेप्टेशन है वो तभी होगा। और ये कैलकुलेट कैसे करना है, ये जो आप पहले भी आपको कई बार बता दिया, पुरानी क्लासेस में भी चला है। तो ये तो था आपकी रिकवरी राइड्स का। सिमिलरली जो आपका लंबा प्लान आप बना रहे हैं, तो उसमें 3 नॉर्मली 3 to 4 वीक्स के लोड के बाद में वी शुड हैव रिकवरी वीक। सिमिलरली जैसे आपका वीक के अंदर में आपने 6 दिन या 5 दिन ट्रेनिंग आपने प्लान कर रखी है, तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हार्ड डेज होंगे, वो आपने प्लान करना है कैसे, और इन बिटवीन मीडियम होगा एंड रिकवरी होगा और एक कंप्लीट रेस्ट होगा। दैट इज रफ आइडिया ऑफ रिकवरी वीक, मतलब नॉर्मल ट्रेनिंग वीक। देन 3 to 4 वीक्स ऑफ लोड। 4 वीक्स तभी जब आप अपना बेस पीरियड में चल रहे हैं या
जैसे आजकल आपका जो भी ट्रेनिंग है तो ही मैक्सिमम 4 वीक का लोड वीक्स रखें आप, एंड 4 या 5th वीक जो भी आपका होगा दैट शुड बी टोटल रिकवरी वीक। वो कैसा होना चाहिए? अ, तो ये इसमें जैसे यंगर या जो मतलब यंग हैं जो जल्दी रिकवर कर सकते हैं उनको 4 वीक्स के लोड के बाद में आप 6 वीक देख सकते हैं। अदरवाइज मतलब दैट डिपेंड ऑल ऑन योर कोच या जो भी जैसे आपको ट्रेनिंग प्लान किया है, बट नॉट मोर देन 4। तो उसमें और वो भी सिर्फ जब आप बेस या एंड्योरेंस और उस टाइप का वर्क कर रहे हैं तो आप 4 लोड वीक्स और 5 आप रिकवरी। अदरवाइज नॉर्मल पैटर्न शुड बी 3 वीक्स के बाद में 4th वीक शुड बी रिकवरी वीक। रिकवरी वीक में क्या है, आपका जो भी आपने पीछे ट्रेनिंग लोड दिया है उसका ऑलमोस्ट हाफ इजी राइड, रिकवरी राइड, बीच में एक आप स्किल राइड उसमें डाल सकते हैं जिसमें आप अपना कॉर्नरिंग, डाउनहिल, उस टाइप की चीजें आप इम्प्रूव करना है या वो डालने। और एक आधी कोई ऐसी राइड उसमें आप डालेंगे जिसमें हम थोड़ा सा एफर्ट आपका होगा, बट मोस्टली इट शुड बी almost half of the intensity of whatever we were doing in previous weeks. अब मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये टिपिकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चार्ट टाइप है। मतलब कि आपका इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये जो पर्पल ये लाइन है, ये आपका ट्रेनिंग लोड है। तो ये मेरा ही है, ये मार्च 24 के आसपास से शुरू हुआ था जो लॉकडाउन वगैरह, तो उसके बाद से तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है दैट मीन्स मेरा लोड बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ये नीचे वाला जो है ये मेरी फिटनेस लेवल या फॉर्म है जो वो नीचे जा रही है, बिकॉज माय बॉडी इज गेटिंग फिटिग एक्सरसाइज रिकवर उससे। और बीच में एक दो जगह लाल भी हो गया, मैंने मतलब ज्यादा उसमें वो किया है। बाकी अदरवाइज जैसे आपने लोड दिया फिर कम इंटेंसिटी वाली, फिर लोड दिया फिर कम इंटेंसिटी, मतलब इस तरीके से दिस इज बेसिक। वो अभी पीछे बहुत दिनों से थोड़ा ऑफिस का वो ज्यादा हो रहा है इसलिए इंटेंसिटी कम होगी वो। एंड जो ये टोटल बीच में ये ब्लू वाली लाइन है, दिस इज माय फिटनेस। तो ये फिटनेस जैसे देखो आप प्रॉपर लोड देंगे, प्रॉपर रिकवरी इंक्लूड करेंगे उसमें, तो आपकी फिटनेस बढ़ेगी। अब मैं बिल्कुल अब सोचूं कि रिकवरी दूं, कुछ नहीं करूं, मतलब हफ्ते में एक दिन इंटेंस एक्सरसाइज की और वो भी 100%, मतलब जो भी इंटेंसिटी उसकी इतनी नहीं है, और रिकवरी फुल कर रहे हैं, तो ये जैसे मेरा ये हाल हुआ। देखिए यहाँ पे फिटनेस और ये परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, और ये मेरा नीचे वाला जो ये है फिटिग लेवल कम हो रहा है, और ये फ्रेश वाले उसमें आ जाए। तो ये चीज मतलब आपने देखना है। ये जोन्स वाला था, तो इसमें दिस इज डिफरेंट जोन्स। मैक्सवेल सर ने आपको पहले ही बताया 7 जोन जो आपको डिफरेंट बताए थे। इसमें बेसिकली जो आपका 5th लेवल तक है दैट इज एरोबिक। इसमें एनारोबिक भी होता है बट मोस्टली इट इज एरोबिक ड्यू टू मैक्सवेल। उसके बाद में इट्स टोटल, इट्स नॉट टोटल 100% एनारोबिक, बट मैक्सिमम 90% या 95-98% इट्स एनारोबिक, मतलब विदाउट ऑक्सीजन। तो जो हमारा ये सारी चीजें हैं, कितने कितने % ऑफ हार्ट रेट या एफटीपी वो यहाँ पे दिया है, यू कैन सी दिस चार्ट। अगर आपके ये एफटीपी या एलटीएचआर ये सब नहीं पता है, आरपी ही भी आप आरपी रेट ऑफ परसीव्ड एग्रेशन, मतलब कि बॉडी मेरी कैसा फील कर रही है, मेरे को कैसा लगता है ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। मैंने आज कोई एक्सरसाइज की है, मैं इसमें कितना अपने आप को थका हुआ फील कर रहा हूँ। अब आज हमने अगर रेस की है, मैंने उसमें 100% एफर्ट किया, दैट विल बी 10 समथिंग लाइक दैट। मैंने रेस की है लेकिन फिनिश नहीं किया, जोर पूरा नहीं लगाया, मे बी 8 or 9, बट इट कुड रीजन कुड बी डिफरेंट कि मैं क्यों नहीं किया। और जैसे आपके रिकवरी राइड है तो वो बिल्कुल ये कैसा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है उसका कैसा फील कर रहे हैं आप, और ये आपके इंडिकेटर्स हैं कि हाउ विल यू फील इफ यू आर गिविंग दैट एफर्ट। ठीक है, और कितनी ड्यूरेशन आप उसमें रह सकते हैं।
मतलब दिस इज द टाइप ऑफ एफर्ट, अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं तो दैट मीन आप नीचे लेवल में कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं VO2 मैक्स कर रहा हूँ और 15-20 मिनट तक कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम नॉट इन VO2 मैक्स कैटेगरी, आई एम बिलो दैट। तो ये जो ड्यूरेशन है, दीज आर इंडिकेटर्स कि आप किस जोन में कितना टाइम तक कर पाएंगे। जैसे एक्टिव रिकवरी है, आराम से आप सारा दिन चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड्योरेंस वाले में है, आप चला पाओगे, कुछ घंटा बीच में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, रुकोगे आप रिकवर, बट अगेन यू कैन कंटिन्यू दैट वे। टेम्पो राइड मतलब कंटिन्यूस आप करोगे तो 1-2-3 घंटे से ज्यादा नहीं कर पाओगे, बिकॉज द इंटेंसिटी इज सो मच। तो दिस इज अ चार्ट विच कैन यूज एज अ रेफरेंस। तो ये मैंने इसलिए डाला था तो कि आपने, और ये जो आपका रिकवरी वाला है दैट शुड इमीडिएटली फॉलो व्हेन यू हैव डन योर ट्रेनिंग इन 4 और अबव 4 लेवल ऑफ एक्सरसाइज। तो उसमें आपका रिकवरी उसी हिसाब से आप यू हैव टू इंक्लूड योर रिकवरी सेशन उस लेवल में। आपने मैक्सिमम एफर्ट्स किए थे तो हैव अ लॉन्गर रिकवरी पीरियड। आपने कम एफर्ट VO2 मैक्स वाले एफर्ट्स किए हैं तो यू कैन हैव लेस रिकवरी, बट डेफिनेटली यू नीड टू हैव रिकवरी। तभी उस पर्टिकुलर सेशन का एफर्ट का आपको आपकी बॉडी को बेनिफिट होगा। दिस इज अ टिपिकल रिकवरी वीक, जो मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, टेम्पलेट है, मतलब एक कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, एक रफ आइडिया है कि कैसा होगा। जैसे डे 1 ऑफ है, शॉर्ट, ये रिकवरी वीक की बात कर रहा हूँ मैं। आपने जो पहले 3-4 वीक जो भी है एक अच्छा वो किया है, हार्ड वीक थे आपके, उसके बाद में रिकवरी वीक वाला आपका कैसा होगा। इसमें 2 दिन रेस्ट है। दिस इज सजेस्टेड, यू कैन चेंज एज पर योर थिंग, बट दिस नीड कंसिडरेशन। एंड आई मस्ट टेल यू कि जो रिकवरी है ना, रिकवरी राइड में, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्यों? आपको लगेगा यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा, थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ। तो यू शुड कम आउट ऑफ दैट मेंटल थिंग कि नहीं, ये जरूरी है मेरे लिए, इसके बिना मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। यू शुड मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड दिस कि विदाउट रिकवरी देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। डोंट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। आप समझो, उनकी ट्रेनिंग समझो, आप जो भी कर रहे हो अपने शरीर की सुनो, लिसन टू योर बॉडी, हाउ यू फील। इफ यू फील गुड, you think the effort which we needed 50% and you could do only 40%, so improve on that, but try to learn this। और ये जो मैंने RP वाला वो जो स्केल दिया था ना, अब ये जो चार्ट है पीछे, try to understand this and relate this with your training session. This will help you in better understanding your training session. हो सकता है मेरे लिए 2 घंटे की राइड एट 50% या उसमें इतना हार्ड नहीं होगा, बट एक नए बच्चे के लिए दिस विल बी मैक्सिमम एफर्ट। तो अब एक बच्चे के लिए हमने प्लान कर दिया, एक बच्चे के हिसाब से हमने प्लान कर दिया कि आज इनका लैक्टिक वो है, बट दूसरे के लिए वही मैक्सिमम एफर्ट हो गया, तो हमारा सारा गड़बड़ा गया प्लानिंग। तो ये चीज हमें एज ए इंडिविजुअल राइडर भी समझना है एंड एज अ कोच भी समझना है कि जो मैं प्लान कर रहा हूँ बच्चों के लिए, वो एक ब्लैंकेट ट्रेनिंग सेशन सबके लिए ना हो। अगर ग्रुप राइड करनी है तो आप उनके ड्यूरेशन कम कर दीजिए, सो दैट ही फॉल्स बिलो दैट इंटेंसिटी ऑफ कैटेगरी विच यू हैव प्लान्ड इन फॉर। तो ये चीज है। सो दैट इज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। सो बाकी वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर। अगर कुछ है किसी का तो प्लीज। Vinay, can you please come in for question and answer? Yes, sir. Yeah, Mr. Sunny. हाँ जी सनी जी बोलो प्लीज। Hello, Mr. Sunny, are you there? इसमें से बहुत पहले हाथ खड़ा किया था, अभी नहीं हुआ। Okay, next. Suchitra,
हेलो हेलो जी सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ सर, नमस्कार सर। ऐसा है, ये हम्म, जो आपका जो सेशन है, इसमें भी एक हम्म, रिकवरी के ऊपर बात हुई है। तो मेरा बेटा जो है वो हम्म, अभी बिगनर है और हम्म, साइकिलिंग में भी अपनी शुरुआत है उसकी, तकरीबन 2 ढाई हम्म, महीने हुए हैं। हम्म, तो उसको बेसिकली अब जो दूसरे बच्चों के साथ में अगर वो राइड करता है, हम्म, और राइड करने के बाद में उसकी जो ड्यूरेशन है वो जैसे अभी आपने बताया कि हर किसी की अलग अलग होती है। तो वो हम्म, एक्चुअली बच्चों को देख करके उसको लगता है कि भाई मुझे जैसे एक बच्चा 3 घंटा कर रहा है, लेकिन वो काफी टाइम से कर रहा है, तो उसको 3 घंटा कराने के लिए अब जैसे अब टीम में काम कर रहे हैं, तो बच्चे भी कई बार बोलते हैं कि भाई आप थक हम्म, गया या तेज चल या क्या करना है। तो उसके लिए उस हम्म, बच्चे को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और साथ में एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को, जैसे अब रिकवरी राइड की हम बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली अब साइकिल को समझना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि साइकिल हम्म, मतलब बच्चा जिस तरीके से चलाता है, तो दूसरे बच्चों की कई बार देखा जाता है पेडलिंग जो होती है उनकी बहुत स्मूथ होती है, यहाँ पे बच्चा कुछ ज्यादा फास्ट कर रहा होता है या उसको कॉम्बिनेशन नहीं पता होता, तो वो हम्म, अपनी बॉडी को ज्यादा एग्जॉस्ट कर लेता है हम्म। भगाने के चक्कर में। तो उसके लिए उसको कैसे गाइडेंस किया जाए या किस तरीके से उसको समझाया जाए? ये इनके साथ में मैं भी चलाता हूँ अपना उसको बच्चे को बोलो कि पहले तो कोच साहब से पूछो ट्रेनिंग सेशन क्या है, किस चीज के लिए, मतलब क्या इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। और अभी शायद उन्होंने आपको जो भी ट्रेनिंग बताई होगी जो करनी है जी जी आपको सर, उसमें। सर ने आपके शेड्यूल दिए हुए हैं सर ने। हाँ, तो वो जी शेड्यूल का उस दिन पर्पस क्या है, क्या आप इम्प्रूव उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, पेडलिंग इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड्योरेंस इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो पेडलिंग की बात कर रहे थे ना, तो जी वो चीज मैटर करेगा। नई नए बच्चे जैसे मैंने जो नोट किया था वो यही था कि वो हैवी गियर चलाते हैं ताकि मैं साथ में चलता रहूं। जी तो वो चीज लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है कि क्यों, बिकॉज ये चीज समझो कि आप हैवी गियर से जहां मतलब केडेंस आपकी, या केडेंस मतलब पेडलिंग जो है वो जी 90 से नीचे है, आप ताकत लगा के चला रहे हो, आप मतलब उसको जो आपकी वो केडेंस है उसमें आप जो आपके मसल्स की ताकत से आप चला रहे हो, ना कि उनके इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब जो दो टाइप के मसल्स हैं आपके, स्लो टिच और फास्ट टिच। तो उसमें जो मोस्टली फास्ट टिच मसल या जो ताकत देते हैं मसल वो यूज होते हैं। जी तो वो इसीलिए जल्दी थक भी जाते हैं क्योंकि वो उनमें उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो जो है ग्लाइकोजन, उसमें मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो उससे काम करते हैं। इसलिए आप जब हैवी गियर ज्यादा देर चलाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे। आप लाइट गियर चलाओगे मतलब केडेंस आपकी 90 प्लस रहेगी या कुछ होगा, तो दैट मीन आपके जो स्लो टिच मसल्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो तो बस उससे सर क्या है लेकिन आपका जो है फैट मेटाबॉलिज्म है जो, या मतलब आपकी बॉडी का मोस्टली उस सिस्टम पे उसमें बॉडी काम करती है। तो उसमें शुरू में तो अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि अगर आपको आदत नहीं है ज्यादा पेडलिंग करने की, बट जी लॉन्ग टर्म में वो आपको फायदा देगा बिकॉज उससे आपकी एक्चुअल एंड्योरेंस इंप्रूव होगी। ओके। बाकी सर, बाकी जो गियर का जो रेशो वगैरह होता है, या जिस तरीके से सर ने अभी बताया है कि गियर के रेशो और स्पीड का मतलब क्या कॉम्बिनेशन होता है, किस तरीके से किस रेशो पे क्या स्पीड भैया होती है या स्पीड किस। देखो, मेरी बात सुनो, स्पीड मैंने पहले भी बताया है कि आप स्पीड के अब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है। जी अब नॉर्मली बच्चे यही करते हैं कि जी मैंने 40 की स्पीड से जाना है, 50 की स्पीड से जाना है। अब वो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपने आपको पीछे से हवा है, हो सकता है आप 55 जी की स्पीड से चले जाओ। अगर आप स्पीड के हिसाब से बात करोगे तो जी ताकत तो आपकी नहीं उतनी लगी, लेकिन अगर आपकी सामने से हवा है, मतलब आपको सामने से हवा पड़ रही, तो हो सकता है आपकी 30 भी ना हो, तो आप बहुत दुखी हो जाओगे, यार मेरी तो खाली स्पीड ही नहीं निकली। तो स्पीड नहीं, आप गियर वो यूज करो जैसे मैंने आपको बताया कि केडेंस आपने उस जो पर्टिकुलर सेशन करना है उसका पर्पस क्या था। अगर एंड्योरेंस कर रहे हैं आप, तो आपकी केडेंस जो मैं 90 प्लस बता रहा हूँ वो होनी चाहिए। तो उस केडेंस को रखने के लिए जो भी आपको कंफर्टेबल गियर लग रहा है आप वो यूज करो। ओके। तो हाँ, मतलब जैसे अब जैसे सब बच्चों का अभी हम देखते हैं कि भाई एक एक हमने शेड्यूल बनाया और तकरीबन हम सबको एक ही पैटर्न को हम फॉलो करवा रहे हैं कि भाई ठीक है आप इस तरीके में चलें।
तो उस करने के लिए भाई अब जितने बच्चे हैं, कईयों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है उस शेड्यूल के हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी थक जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो बनाया होगा आपका वो सबके लिए जनरल वो बनाया है, गाइड वो एक तरीके से गाइडेंस है आपके लिए। आप जी सर। उसमें अपने जो बच्चे के हिसाब से उसको ऊपर नीचे थोड़ा वो मतलब आप वो करिए। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना, पहले आप पूछो कि वो सेशन का पर्टिकुलर पर्पस क्या है, किस पर्पस जी क्या इंप्रूव करने के लिए वो सेशन हम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप उसका गियर सेलेक्ट, मतलब जो भी उन्होंने अगर आपको बताया कि इंडोरेंस इंप्रूव करनी है तो हाँ ठीक है, दूसरे बच्चे के हैवी गियर चलाएगा तो ये अपना जो ये मेंटेन कर सकता है वो गियर चलाए उस कैडेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, किलोमीटर वाला जो है वो सिस्टम नहीं, आप टाइम का रखो। क्यों, मैंने जो जैसे भी बताया आपको कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, 10 किलोमीटर है, अगर आप टेल विंड है, मतलब आपको पीछे से हवा मिल रही है, तो हो सकता है आप 10 मिनट में पहुंच जाओ। जी मतलब मैं एक वो बोल रहा हूँ कि 60 की स्पीड होगी, मैं ये नहीं कि जस्ट एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर वही 10 किलोमीटर में आपको सामने से हवा है तो हो सकता है आपको आधा घंटा लगे। तो ठीक है सर। डिस्टेंस डिस्टेंस तो आपने 10 किलोमीटर ही तय किया, लेकिन आपका पूरा ट्रेनिंग का सेशन ही गड़बड़ा गया। कहाँ आपने राइड करनी थी इंड्योरेंस के लिए, वो आप डिस्टेंस राइड हो गई। तो इसीलिए टाइम बेस्ड आप वो करिए कि मैंने 1 घंटा चलानी है, 2 घंटा चलानी है, फिर उसमें कितना एफर्ट करना है, किस जोन में करना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें सेट होनी शुरू अपने आप उसमें सेट हो जाएंगी। तो सर नॉर्मल ड्यूरेशन क्या है साइकिलिंग का, मतलब बेसिकली एक बच्चे के लिए कितना घंटा राइड करना मतलब वो सफिशिएंट है? देखो, वो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, किस स्टेज में है, किस लेवल में है। वो आपके जो कोच हैं वो बेटर आपको गाइड करेंगे जी कि जी आज वो हमने जो भी मैंने बताया ना आपको क्या इंप्रूव करवाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से वो आपको गाइड कर देंगे कि आज आप 1 घंटा चलाइए, 2 घंटा चलाइए, 3 घंटा चलाइए। स्पीड और डिस्टेंस इसके पीछे नहीं जाना है आपने, कैडेंस किस जोन में आपको करना है वो, और ड्यूरेशन कितनी देर करनी है, वो चीज पे जी ध्यान, सर। ये 3 चीजों पे आप ध्यान। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट विनय, नेक्स्ट। Okay, next Amit Singh Rajput. हाँ जी अमित, हेलो बोलो सर, भाई। नमस्कार अजीत सर, नमस्कार। नमस्कार। सर नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी लगभग मैं 7-8 बच्चों को ट्रेनिंग ट्रेनिंग ऐसे बेस पे दे रहा हूँ। तो फाइनली वो 3-4 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, 3 से 4 किलोमीटर अभी स्टार्टिंग है उनका। ओके। तो साइकिल तो नॉर्मल साइकिल है, हमारे पास इतनी महंगी साइकिल तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत से गरीब बच्चे हैं। हाँ तो कोई सर बात नहीं। उनके ना बाएं साइड में मतलब जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है जो, हाँ फिर हाँ। बाएं साइड साइकिल चलाने के दौरान 2-3 बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि मुझे बाएं साइड में पेन होता है, नीचे ओके। इधर कमर के साइड में। अच्छा। 2-3 बच्चों का सेम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हाँ क्या हाँ। करना होगा सर हम? नहीं, आपने उनका साइकिल फिट जो है वो चेक किया है, ठीक है, हाइट वाइट साइकिल की और हाँ सर, जिस जिस अकॉर्डिंग से आपने बताया था, मैं नॉर्मल साइकिल वैसे ही मैंने कराया है हाँ हाँ। जी। बट वो साइकिल नॉर्मल साइकिल है जो आजकल आती है 1500-3000 रुपये में, जो साइकिल आती है वो। अच्छा। और सभी के तो सभी गर्ल्स हैं सर। ओके, जी तो एक बार आप डॉक्टर को चेक करें कि मेडिकल रीजन तो नहीं है उनका, अगर उनको इस टाइप सर, का वो कोई पेन। 3 बच्चों का सेम है सर। 3 मतलब 8 बच्चों में 3 बच्चों का सेम प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर मस्कुलर है तो फिर अगर साइकिल फिट वगैरह आपका ठीक है तो मस्कुलर पेन तो नहीं होगा ये कोई इंटरनल कुछ और उनको होगा। वो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। वह तीनों को डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा सर, तीनों को। हाँ, एक बार कंसल्ट कर लो क्या बताते जी हैं। जी जी अगर सर। वो फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर देन उसमें कुछ और सोच सकते हैं। एंड सर क्वेश्चन और है कि मैंने हम्म, साइकिलिंग के दौरान मैंने ये कहा था कि आप पानी का प्रयोग बहुत, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो हाँ और हाँ। उस समय एकदम गर्म, बॉडी पूरा गर्म होता है, उस समय आप पानी का यूज ना करें, तो ये क्या सही सलाह है या नहीं नहीं, गलत है, मैं गलत हूँ? गलत गलत है, जी गलत है। मैंने अभी जैसे हाइड्रेशन वाला उसको बताया ना, जी सर। जी साइकिलिंग में या किसी भी गेम में जहाँ आपकी जी इंटेंसिटी एक्सर्शन लेवल ज्यादा है, ड्यूरेशन टाइम का आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका ज्यादा है, तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। मतलब पानी तो आपने, अच्छा सर। जैसे आपको उस दिन न्यूट्रिशन वाले मैडम ने जो लेक्चर लिया था उन्होंने ही बताया था कि इकट्ठा नहीं पीना है, सिप सिप जी करके थोड़ा पीना सा है, ठीक है। पहली बात। जी 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 दूसरी बात कि
प्यास लगने से पहले पीना है। जी तो आपका वो जो इंटरनल आप गर्मी बता रहे हैं ना, बॉडी गर्म वाला है, जी तो जी वो तो जी। हमने उस लेवल पे तो जाने ही नहीं देना ना बॉडी को। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो चीज आप ठीक। उनको बताइए कि 10-15 मिनट बाद में एक घूंट या पानी वो आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें। हो सकता है वो इसी मेरे को वजह लगता से है उनका उनका पेट पेन भी होना। इसी वजह से हो सकता है। वो जो जी कहते जी हैं जी, ना, हो सकता है। हमारे पंजाबी बोलते हैं बक्खी चढ़ गई, वो इस वजह से भी होगा, वो अंदर क्रैम्प कर जाता होगा। ठीक ये सर, भी हो मैं सकता है, एक बार आप करके ट्राई करके देखता हूँ देखो। इसको। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। Okay, next, Mr. Utsav. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sir, my question is to Maxwell, sir. ओके, कैरी ऑन, इज लिसनिंग। Yes, tell me. Sir, on the date of 6, you have explained about the time trial list changing, from front to back, like internally and externally. It's like I couldn't understand it properly. Would you please tell it again? Actually, Utsav, if you ask this question on Saturday, will be very good because today's questions are pertaining to today's topic. I can answer you now. Ajit, shall I answer? या प्लीज प्लीज। Okay. Okay. You were asking about the changing, right? Yes, sir. So what exactly you want to know about the changing? Sir, like on the efforts the rider take on him while changing, like the person who's at the back won't take that pressure. Okay. Okay. The third person or the fourth person. पेसिंग, इज टॉकिंग Yeah. अबाउट पेसिंग। So what I was telling you, you are referring to that particular day. What I said on that day was that the rider in the lead position, why he has this effect, उसको ज़्यादा थकान क्यों होता, why he gets extra tired is because he is moving into air particles and compressing the air particles. These air particles get again shifted to the side and come from the front of the rider to the back of the rider. When this happens, there is the air pressure in the front of the rider and the air pressure behind the rider are two different air pressures. The difference in this air pressure causes something called drag. It's called drag force or drag pressure. This drag force helps the second rider to make it easy because it kind of pulls the second rider. Also, it restrains the first rider a little bit. So that is what drag is all about, and that is what this is the external effect. This is what happens when a rider is riding, and this is the external force that is facing. Internally, what is happening is his intensity when he's taking the lead in the front as a first rider, he is in a higher intensity because he is facing this factor. This is a natural factor. He is facing the wind, so his intensity is a little higher. So he is, if it is at a good speed, if his intensity is very high, then he cannot sustain that for a long period of time. So he comes behind. When he comes behind the last rider, then because of this drag advantage that he's getting, the intensity in his body goes down a little. So then what happens is his recovery is better. So that is teamwork is all about that. Teamwork is all about intensity in the front, coming behind, taking advantage of the drag and recovering and getting recovered and ready for the next lead, what we call. So basically what we call drafting or what we call pacing, that is the technical aspects of what happens. I also said it is bigger, the bigger the object, the more this effect. Like a lorry, when a lorry is moving, the bigger the object, the more air particles compression, the greater the drag force or greater the drag pressure. That is why it is easy to ride behind a lorry. That is what I explained. Yes. Did you understand? Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that the person at the back can easily rest. Yeah, because of the drag effect, what we call Yes. drafting or pacing, this is what happens Yes, sir. technically and helps you to pace or to draft. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. నెక్స్ట్. Okay, Mr. Daksh Shah. మనలో అయిపోయింది. అరే ఆడు ఉన్నాడు చూడు లాస్ట్ నుంచి సెకండ్. Hello, ఇక్కడ నుంచి సెకండ్ రా, ఈ బ్యానర్ లో రా. Mr. Daksh Shah. दक्ष प्लीज बोलिए। मिस्टर दक्ष बोलिए। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत स्लो आ रही है, आप थोड़ा सा। हाँ, अभी बहुत कम आई है। हाँ सर, अभी आ रही है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहले जी। से बेहतर है, बोलिए। हाँ सर, आपके चार्ट के बारे में मेरे को पूछना था कि आपका जो हाँ चार्ट हाँ आपने बनाया है हाँ वो हाँ। कैसे क्रिएट करते हैं, और वो कौन वेरी सा वाला यूजफुल। चार्ट? सर वो आपने ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट चार्ट। यस यस यस, वो ट्रेनिंग अच्छा। आप कर रहे हैं, आपका हाँ परफॉर्मेंस हाँ आ रहा है, आपका वो लोडिंग और हम्म। ओवरलोडिंग का पूरा सब दिखा रहे हैं। वो हाँ जो हाँ आपने हाँ चार्ट बीच में मेंशन किया ना, उसके बारे में हाँ बोल हाँ। रहा हूँ। ओके ओके। तो उसके लिए वो ना, कैसे कैसे क्रिएट हाँ, हो सकता है, और उसके लिए हार्ट रेट और पावर पावर प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। पावर जरूरी नहीं है, बट होने से अच्छा है, बट हार्ट रेट जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज जो ऐप या जिसमें वो सॉफ्टवेयर जिसमें वो बनता है, उस वो आप समझ नहीं पाएगा ना कि आपका कितना एफर्ट लगा, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। एफर्ट लगाने जो लग रहा है आपका, उसको कैलकुलेट करने के लिए या समझने के लिए कम से कम हार्ट रेट जरूरी है। तो आई एम यूजिंग गार्मिन, और वो मेरे पास हार्ट रेट भी है, हार्ट रेट का। हाँ हाँ। तो उसमें ये चार्ट क्रिएट हो सकता है, या उसके लिए कोई नहीं नहीं, और कौन गार्मिन सा में नहीं सॉफ्टवेयर होगा चाहिए? ये, देखिए, या ट्रेनिंग पीक्स है जो बनाती है, WKO उनका सॉफ्टवेयर है, या फिर आपका ये गोल्डन चीता है। WKO जो है वो पेड है, और गोल्डन चीता फ्री है। बट वो है कि उसमें ओके फ्री है तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो, बट उसके लिए आपको जैसे आप स्ट्रावा या कुछ ऐसा कोई ऐप यूज करिए, उसके जो भी आपकी गार्मिन है यूज कर रहे हैं, तो आपकी राइड्स उसमें अपलोड हो जाएंगी। तो उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपकी जो भी राइड गार्मिन वाली है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट करने के लिए फिर आपको ट्रेनर और बहुत कुछ चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी स्ट्रावा से आप सिंक कर सकते हैं उसको। और इवन गार्मिन से डायरेक्ट सिंक नहीं होता, वो स्ट्रावा से हो जाएगा आपका। स्ट्रावा से आप सिंक करेंगे तो गोल्डन चीता में आपकी सारी राइड्स आ जाएंगी। अच्छा, और स्ट्रावा से पूरा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, या फिर आप ट्रेनिंग पीक्स पे जो फ्री वाला अकाउंट बना के आप डेली की डेली, आप जैसे स्ट्रावा में भी दिखाता है, आप उसमें व्यू एनालिसिस करके एक होता है ऑप्शन, तो आप, ओके बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चार्ट जो है आपका वो जो WKO है वो, या फिर ये जो मैं बता रहा हूँ गोल्डन चीता, इसमें ही हाँ बनेगा। हाँ। उसमें स्ट्रावा में नहीं बनाता, उसमें पेड में ही बनाएगा वो। ओके ओके सर, हाँ जी। दिस इज ग्रेट नॉलेज सर, जो हम कितने दिनों से हम आपसे पढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि सर साइकिलिंग का गीता पढ़ रहे हैं, अरे चैप्टर बाय नहीं। चैप्टर। नहीं नहीं, सही में बोल रहा हूँ सर, ये हमारे काफी मिसकॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डेज। क्यों काफी गलतियां थी हमारी सोच में। मैं ओके। हाँ, तो मेरे मेरे साथ में जो छोटे बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके मिसकॉन्सेप्ट भी काफी है, तो वो भी मैं हम लोग निकाल देंगे। और बिल्कुल काफी बिल्कुल। हेल्दी डिस्कशन के बाद, और एक राइट लेवल के पर्सन से हमको नॉलेज मिल रही है अभी, कि जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये, हाँ अजीत सर बोल रहे हैं तो ये सही ही होगा, हमको कुछ दूसरा सोचने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं दिस है, इज वेरी सुनिए गुड सुनिए, सर, आपने। दैट्स, थैंक यू फॉर योर गुड वर्ड। बट सी, हर कोई सीखता है, एंड ही लर्न टिल, डॉक्टर मैक्सवेल सर के वर्ड हैं, टिल ही गोज टू रेस्ट। तब तक सीखता है इफ ही वांट्स टू। तो एंड वी आर इन द सेम बोट। हम एक दूसरे से सीखते हैं, बट ये है कि हाँ, जो मैंने सीखा है अगर वो मैं शेयर करता हूँ, ठीक, आप कोई भी है, नॉलेज शेयर कर सकते हो इंटेलेक्ट में, ठीक है ना। मैं आपको नॉलेज ही दे सकता हूँ या आपसे ले सकता हूँ, आपका इंटेलेक्ट नहीं ले सकता। तो कई ऐसे होते हैं ना जो बताते नहीं है, कुछ बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, वो सोचते हैं कि भी इसको पता लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो उससे कुछ नहीं होता है। तो अब जो आपको मालूम है, शेयर दैट नॉलेज। So that is what we here in the panel think. So that's why we are doing all this effort. और आगे आगे अभी जो क्लासेस आनी है ना, वो और मतलब इस तरीके के टेक्निकल और इसके ऊपर में अब ज्यादा हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल सीनियर जो हैं, कोचेज हैं, तो दे अंडरस्टैंड एंड शेयर वट एवर दे ऑल्सो है, सो दैट एवरीबडी बेनिफिट फ्रॉम इट। I just want to add something, Aditya. या इसीलिए तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम ने कंडक्ट कर रहा कि फॉर एवरीवन टू इम्प्रूव द नॉलेज। और आप जैसे लोग अभी जो सही तरीका सीख रहे जो ट्रेनिंग के लिए, इसी पर्पस के लिए CFI ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा। एंड इट इज वेरी, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर लर्निंग, एंड वी इनकरेज यू, आप डेली अटेंड करिए, और आगे भी बहुत अच्छे क्लासेस है, and take the benefit of this. And we thank the CFI once again for this great opportunity and this Yes. platform.
so many people are benefiting from this platform. Thank you. Yes, sir. Definitely we are getting benefited. And sir, मैं श्योर बोल रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं साइकिलिंग की गीता पढ़ रहा हूँ. Very good, sir, and congratulations to you and all working body. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, next one is Mr. Vikram. हेलो. हाँ जी मिस्टर विक्रम. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मेरा क्वेश्चन है, समटाइम्स ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट्स और ड्यू टू ट्रेनिंग ओवरलोड there is a permanent lactic acid accumulation or build up in your leg muscles. उनके लिए रिकवरी के लिए बेस्ट टेक्निक क्या आपसे रिकमेंडेड है? पहले तो जो परमानेंट लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन ऐसा नहीं होता है. देखिए जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, जो इवन LTHR या जो था लैक्टिक थ्रेशोल्ड जो है, होता क्या है कि हम जैसे जब एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे मसल्स में जो भी वो बाई प्रोडक्ट या लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ में निकलता रहता है. बिल्कुल ठीक है. लाइक ट्रैफिक लाइट के आप जब जाम जो लग जाता है ना रास्ते में, वो क्या होता है कि जब गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं और रास्ता कोई तो नहीं है. Absolutely. तो हाँ, तो सिमिलरली जब हमारा एक हम स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जो सर्कुलेशन है वो उस पूरे जो फॉर्मेशन हो रहा है लैक्टिक एसिड का वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एसिडोसिस होता है, जिससे कि मसल के अंदर एक एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है. वो जो बर्निंग सेंसेशन है, जो दर्द, वो जलन होती है ना, वो उसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की वजह से नहीं होती है. वो उसकी वजह से जो माहौल बन गया है वहां पे, उस वजह से होता है. और उसको उससे रिकवर करने के लिए बेस्ट इज, आप जो रिकवरी राइड जो बता रहे हैं कि बिलो 50% इंटेंसिटी आपका हार्ट रेट या जो भी है उसके करना. और दूसरा मसाज है, कोल्ड आप बाथ ले सकते हैं, आइस बाथ. और इसमें गर्म मसाज जो है ना, उसके भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं. यहाँ पे अब ज्यादा वो उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन वाली मसाज करानी है तो मतलब दैट विल बेनिफिट, नॉट नॉर्मल रेगुलर मसाज, वैसे नहीं. वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो मसाज जो मैस्योर होगा उसको मालूम होगा कैसे करना है. ठीक है. तो अदरवाइज इमीडिएटली आफ्टर हार्ड सेशन यू कैन गो फॉर कोल्ड बाथ, जैसे वो मैंने उसमें लिखा भी था. आइस बाथ ले सकते हैं, या आप बर्फ के अंदर टांगे डाल के वो चीज वो बैठे. गर्म वाला कुछ ना करें कि आप सोना ले रहे हैं या कुछ ऐसा, वो ना करें. तो क्योंकि उससे और ज्यादा फिर गर्मी से क्या है कि पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा, तो वो चीज और एग्रीवेट होगा. ऑल्टरनेटिंग कोल्ड एंड हॉट थेरेपी भी कुछ बेनिफिट देता है? वो बाद में 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद में. ओके. हाँ, उसमें क्या है कि उसमें हॉट का पर्पस, जो ऑल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड करते हैं, उसमें ये है कि गर्म करने से यू स्टार्ट इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन टू योर मसल्स. तो और फिर कोल्ड करने से जो ज्यादा जब हो जाता है ना, जैसे हम गर्म करते हैं किसी चीज को, फिर थोड़ा ठंडा करके, मतलब वो वाला प्रोसेस है बेसिकली वो. राइट. सेकंड क्वेश्चन सर मेरा एक छोटा सा और है, which is slightly nutrition related also. Supplements like magnesium and omega-3 also help in recovery, do they? Omega-3 directly तो नहीं. Magnesium being a mineral, yes, definitely it does. But अगर डिपेंड, देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, इट ऑल डिपेंड द टाइप ऑफ इंटेंसिटी यू आर डूइंग. अगर बहुत ज्यादा लंबा 2-3 घंटे से लंबा सेशन नहीं है, छोटा सेशन है, हार्ड इंटेंस है, और मतलब बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं है बॉडी में, तो ज्यादा इन चीजों पे आप वो मत करिए, नॉर्मल वो रखिए. Omega-3 अदरवाइज इट्स गुड, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है वो. सर मुझे थोड़ा सा एक चीज ये गाइड करते हैं, अगर ओमेगा-3 में भी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, DHA है या EPA है, what is the kind of dosage required for a 15-year-old? Because from different people I have seen different inputs, from 250 milligram to 1000 milligram they are recommending, but I think for a specifically 15-year-old, what should be the dosage? मेरे को ये बताइए कितनी ट्रेनिंग करता है आपका बच्चा? Sorry, कितनी ट्रेनिंग करता है बच्चा आपका पर डे?
पर डे की मिनिमम 1 आवर से लेके 3 आवर्स तक का शेड्यूल होता है 6 days a week. ओके 3 आवर्स कितनी बार करता है हफ्ते में? 3 hours is only one time. हाँ Most of the sessions are approximately 1.5 to 2 hours. मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है इतना। आप अभी ये सप्लीमेंटेशन और इन चीजों पे अभी मत डालो, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए, दैट इज मच। हाँ, definitely we are of course nutrition is the major thing, but हाँ omega 3 की भी आप समझते हैं इस टाइम कोई जरूरत नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी। जो जिस टाइप की उसके वो होगा, और अभी इतना इंटेंस मेरे ख्याल वर्कआउट होंगे भी नहीं उसके, बेस वाली ट्रेनिंग मोस्टली होगी ज्यादा। तो अभी इन चीजों पे आप उसको मेडिकेशन मतलब टाइप की जो है ना, इन पे अभी मत डालो आप Right. उनको नॉर्मल खाना या उसमें देखिए किसमें 10 वो दे सकते हैं, अंडा है, फिश है, वो चीजें आप वहां से उसको कंपनसेट करो। Right. Thank you जी, thank you so much. वेलकम। Okay, next one is Mr. Surajit. हाँ जी सूरज जी बोलिए। नवीन को अपने आप को म्यूट कर लिया उन्होंने। Okay, next one is Sis from Bihar. गुड मॉर्निंग सर। हाँ शीर्ष बोलिए please। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं 1 घंटे का राइड करता हूँ या कभी 2 घंटे का, उसके बाद कितने देर सोना चाहिए सर? कितनी देर सोना चाहिए? हाँ। नहीं दिन में रात में कैसे आप मतलब देखिए नॉर्मल आपका 6 से 7 घंटे जो रेस्ट दैट इज इनफ, ठीक है ना। बाकी देखो बॉडी आपको मैंने जो आरपी बताया था ना, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, इसके साथ में ये वो तो हो गया एक्सर्शन आपका, जो आप एफर्ट आपने किया है वो कितना था, आपको कैसा तो लगता है। अगर वो इट इज एट द स्केल ऑफ 8 to 10, तो आप सुबह आपने किया है तो वो आप पूरा दिन रेस्ट कीजिए, नेक्स्ट डे देन यू हैव अ रिकवरी सेशन या हल्का सेशन कीजिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस नहीं, अगर लंबा लेस देन आवर या 1 घंटे तक का आप वो कर सकते हैं। आप नॉर्मल मीडियम इंटेंसिटी वर्कआउट किया है तो जिसमें कि आप इवनिंग में कोई दूसरा सेशन हल्का सेशन छोटा मोटा कर सकते हैं आधे 1 घंटे का, और उसके नेक्स्ट डे फिर आप मतलब प्रॉपर उस टाइप से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे मैं 1 घंटे का राइड करके आया, उसके बाद आफ्टर कुछ खाना पीना किया, उसके बाद 4 घंटे सो गया, तो ये सही है कि नहीं? कोई दिक्कत, देखिए आप रेस्ट कितना करो उसका नुकसान नहीं है, वो अच्छा ही है। रेस्ट नहीं करना नुकसानदायक है। ओके सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके Okay, next one is Mr. Alex. कौन है? एलेक्स। हेलो सर। यस एलेक्स प्लीज। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। हेलो sir, I am from Kerala. Okay. My question is, if a 3 or 4 hours duration of practice, if a salt water is helpful for raising our energy? Pardon, please repeat your question. 3 or 4 hour session? Salt water drinking. Just salt water? Yes sir. No. You should add lemon or something like that. Okay. And sugar. Okay. Don't take simple salt water, because see, आप सिर्फ salt water लेंगे, it will increase your dehydration. Okay. In everyday section, a small bottle of salt water, or week in a lengthy ride. See, it all depends, Alex. It all depends on the intensity of workout you're doing. If you're doing normal regular workout till 45 minutes, 1 hour, so you don't need any special. Hello, you are listening? Hello. Okay, yes sir. Alex, see, if you're doing normal intensity workout which is less than 1 hour, up to 1 hour, you don't need any special supplementation. Okay. Yeah. In case you're doing long rides and where intensity is medium to high, then definitely you should have regular hydration with supplementation.
Okay. and some food also with it, light food, snack या कुछ ऐसा, so that you along with minerals and salt which you lose, you have some carbohydrates या कुछ ऐसा, मतलब आपका bread jam या something you should keep with you. Eat that. Banana है, banana is the best energy food. Keep Okay. that. If you're doing it less than 1 hour and it's not very intense, then normal water is okay. But Okay. don't forget the nutrition part after your exercise. Okay. Okay. Sir, another question is, which type of food we eat in morning for a practice section? I told you Which- ना, अभी बताया, food which is rich in carbohydrate, उस टाइप का आप लीजिए. ब्रेड जैम हो गया, बनाना हो गया, फ्रूट समथिंग like that, या if you understand खीर, जो राइस पुडिंग होता है, जो you can have that. Okay. हाँ, food which is rich in sugar या मतलब glucose, that is beneficial and but not hard to digest. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, welcome. Okay, next one is Mr. Surajit. गुड आफ्टरनून सर. अजीत Good सर. afternoon. बोलिए दादा. हाँ सर, मिस्टर मैक्सवेल सर आपका बारे में बोल रहा था, आप ट्रायथलॉन भी किया. हाँ. सो मेरा एक सजेशन है, मैं 2021 पे गोवा पे हाफ आयरनमैन ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट करना चाहता है. तो वहाँ पे 90 किलोमीटर साइकिलिंग है. तो अभी तो मैं रनिंग कर रहा है खाली, स्विमिंग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि कोविड का बारी में पानी में नहीं उतर रहा है. अभी खाली रनिंग कर रहा है. तो साइकिलिंग भी अभी स्टार्ट नहीं किया. तो 90 किलोमीटर साइकिलिंग पे कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे मेरे को फैटिक नहीं आना चाहिए, तो उसका बारे में थोड़ा हेल्प चाहिए आपका. तो उसके लिए तो पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा. अभी मैं आपको अभी 5 मिनट में क्या बताऊंगा, वो तो नहीं, जस्ट थोड़ा सा बता दीजिए तो मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ. कब है आपका ये जो कंपटीशन है? 2021 नवंबर. तो अरे अभी तो 1 साल से ऊपर है. हाँ, तो मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ. कैसे शुरू करें, जस्ट थोड़ा सा बता दीजिए तो हो जाएगा मेरा. उसके बाद तो मैं अभी, हाँ, तो आप एक काम करिए, हफ्ते में एटलीस्ट 2 डेज आप साइकिलिंग कीजिए. 90 किलोमीटर है ना, तो 1 आवर, सॉरी 2 आवर्स to 3 आवर्स आप राइड कीजिए. हाँ. मीडियम इंटेंसिटी, मतलब जोन 2 जो आपका है, एंड्योरेंस राइड जो. ओके सर. ठीक है, अभी बेसिकली आप ये शुरू कर दीजिए. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, ओके. नेक्स्ट है ना, Mr. सुखबीर. हाँ जी सर, प्लीज बोलिए. Yeah. Good morning, sir. I'm from Chandigarh. I just want to know, like my son, he goes for cycling, and throughout the day, his body remains quite heated up, right? So, you told about ice water therapy. So, is it okay, like if he goes, like we give him cold, very chilled water, and because normally, like in our language, we say garam thanda ho jata hai. So is it going to affect that way, or is it okay to have and after how long we should have that chilled bath or something like that? Chilled bath, so he can have once he comes back from the training, he can have that is not a problem. But पीने के लिए don't give him chilled water immediately. Okay. तो हाँ, वो जो सर्द गर्म बता रहे हैं वो उसकी वजह से होगा, उसको अगर होगा तो. No, so like after coming, after how much time he should take a bath, like if he has to go for chilled water bath? आने के बाद में अपना जो बताया था 30 मिनट्स वाला वो विंडो, अपना पानी पुनी पी के थोड़ा रेस्ट करके, then he can have, that is not a problem. Okay. So is there anything else that can lower the body temperature? All the time he remains quite warm. That means मैं समझ रहा हूँ, I think उसका जो हाइड्रेशन लेवल है that is low. Yeah. Okay. तो रेगुलर पानी और वो आप उसको पिलाइए, उसको बोलिए पीता रहे, इवन ट्रेनिंग के टाइम में भी you should regularly drink water.
And sir, what about that? You talked about some recovery garments also. Are they helpful? Compression garments. Yeah, are they helpful, and how they should be used? Compression garments are helpful. See, when you are doing very high intensity workout and जो वो जो लैक्टिक एसिड वाला जो नहीं मिस्टर विक्रम ने भी पूछा था कि वो जमा हो जाता है, दर्द होता है अगले 2-3 दिन, मतलब उन चीजों में when you're doing high intensity workout, so that way they assist in recovery. अब नॉर्मल राइड कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर उसको जो आपको बॉडी हीटेड रह रही है तो आप एक बार उसका टेस्ट वगैरह भी डॉक्टर को दिखा के ना वो करवाइए कि अगर उसके रेगुलर ये चीज है तो दैट मीन्स जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन है उसका ज्यादा है, तो उस he could be having some other reason behind it, not just cycling. Yeah. Right. Thank you very much, sir. Welcome. Okay, next one is Mr. Deep Jate. हाँ जी Deep, please. Mr. Deep Jate. हेलो सर। Yes Deep, please बोलिए। सर वो नेशनल के लिए कितना किलोमीटर चलाना पड़ेगा साइकिल? क्या चलाना चाहते हो आप नेशनल में? लॉन्ग मास्टर या टाइम ट्रायल? सर लॉन्ग डिस्टेंस मतलब साइकिल का। लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में 2 इवेंट है, मास्टर है, टाइम ट्रायल है। और टाइम ट्रायल का सर? टाइम ट्रायल 40 किलोमीटर का है। 40 किलोमीटर? हाँ यस सर। तो क्या चलाना चाहते हो आप बताओ? सर ऐसे तो साइकिल इवेंट पे पहला बार आया सर, पहले तो हम एथलेटिक्स खेलता था सर। अच्छा। तो इस बार साइकिलिंग में आया सर। ओके, तो आप अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या ट्रेनिंग कर रहे हो? अभी तो मैं साइकिल का ही कर रहा हूँ लॉन्ग। नहीं क्या प्रैक्टिस है, वही साइकिलिंग में क्या कर रहे हो आप? सर ऐसे तो अभी तक तो कुछ मतलब ऐसा मतलब नहीं लिया, ऐसे ही लॉन्ग कभी कभी साइकिल चलाने के लिए निकल जाता हूँ सर। वही पूछ रहा हूँ, आप हफ्ते में 2 दिन चलाते हो, 1 दिन चलाते हो, रोज चलाते हो और कितना देर चलाते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिलहाल तो 1 घंटा चलाते हैं सर। डेली चलाते हैं? हाँ डेली चलाते हैं। और आपका एज कितना है? मेरा 50 सर। 15? हाँ 50 सर। नहीं 15 या 50? 50। 50? हाँ 50 वाला का तो कोई नेशनल में कंपटीशन ही नहीं है, इवेंट ही नहीं है कोई। अच्छा सर। तो अगर आप 50 बोल रहे हो तो यार बहुत यंग लग रहा है 50 के हिसाब से। अच्छा सर। अभी ये रिक्वेस्ट करेंगे मैक्सवेल सर को कि 50 वालों के लिए भी शुरू करवाओ। मेरे को लगता है उसका 50 नहीं है, he is making a mistake. उसको नहीं, that's why I confirmed 15 or 50. He said 50. नहीं 50 है सर। 50? हाँ नहीं मेरा 50 है मैंने वेट सर। 58 नहीं आपका एज यार, एज पूछ रहा हूँ आपका, इसलिए बोला। ये 16 सर 16 16 साल का है वो। मैं वही कह रहा हूँ 50 के हिसाब से तो बहुत यंग लग रहा है। अच्छा नहीं सॉरी तो सर। आप जो हाँ नहीं आप जो 1 घंटा चला रहे हो वो बहुत ठीक चला रहे हो, आप कंटिन्यू करो, ठीक है? हाँ सर। हाँ, और कहाँ रहते हो आप? सर असम। असम? हाँ तो सर। असम कल सर ने क्लास लिया था ना, पावले सर ने। असम में कहाँ है आपका घर? गुवाहाटी? नहीं गुवाहाटी से दूर है थोड़ा सा, गांव पे थोड़ा। ओके कोई बात नहीं। तो आप पावले सर को कांटेक्ट करो, वो आपको गाइड करेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा हाँ सर। हाँ वो वहाँ पे कोच हैं एकेडमी में। अच्छा नहीं सर हम लोग वो ट्रायल दिया था, मतलब वो जो मतलब गुवाहाटी में हुआ था ना साइकिल का जो ट्रायल, उसमें सिलेक्ट हुआ था सर, लेकिन एक देश से दिल्ली पे एक देश से बोला था वो मतलब अभी तक नहीं हुआ सर। ये ऑलरेडी खेलो इंडिया में सिलेक्टेड है ये। अरे हो जाएगा, अभी कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है सारा काम, तो हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अभी आप जो चला रहे हो वैसे डेली चलाओ, ठीक है? हाँ ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ विनय। Okay, next one is Mr. Salendra Nath. चलो लास्ट है। Yeah, this is the last question. Hello, good morning sir. Yes please. Good morning. सर मेरा क्वेश्चन है कि ये रोड टाइम ट्रायल इवेंट में टीटी बाइक का यूसीआई लीगल मेजरमेंट्स रहता है ना सर,
हाँ हाँ वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, कैसा हम लोग सैडल सेट करने का है, सैडल को और रेस्ट बार्स को? वो आप अगर आपके YouTube पे आप देखोगे तो वीडियो है, वो जो अपना वीएन सर ने लिया था ना साइकिल बाइक फिट वाला। हाँ सर। क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता पाऊंगा ना, आप साइकिल पे बैठे हो तो बता सकता हूँ कि आपका सीट नीचे है, ऊपर है, आगे है, सीट पीछे है। नहीं ऐसा नहीं सर, वो एक बात है कि मेरा हाइट 190 सेंटीमीटर से एबो है। वो कुछ रूल्स में लिखा हुआ है कि 190 के नीचे वालों को एक रूल है, एबो 90 190 हाँ, का वो एक्चुअली जो आपका क्लिप ऑन हैंडल बार लगाते हैं ना आप, जो बीच में जिसको पकड़ के बैठते हैं, हाँ हाँ, उसका जो डिस्टेंस है वो उस जो 185 इनके लिए 185 है, नहीं तो 175. It is actually 175. For those above 190 it is 85. But he can only take one advantage. अगर हैंडल बार का लिया तो सैडल का नहीं ले सकता, अगर सैडल का लिया तो हैंडल बार का नहीं ले सकता. If your height is more than 190 centimeters, you are entitled for this 10 extra centimeters, which is 185 from the direct center axle line of center axle. But you can only take one advantage, either this or that, and provided your height is more than 190 centimeters. मतलब आप सीट आगे कर सकते हो या हैंडल को आगे कर सकते हो, दोनों में से कोई कर सकते हो। ओके ओके, या सैडल या रेस्टिंग बस दोनों में एक एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, एंड I request Dr. Maxwell to please conclude. Thank you, sir. I am very sure that every one of you had a great session today, including me. I also enjoyed today's session. It was very, very informative and very, very knowledgeable. And I'm sure, as we've already got compliments, that this is a great platform. I once again thank Ajit Singh ji for his excellent lecture today. And I thank the Cycling Federation of India and the Sports Authority of India for this excellent platform. Along with everyone else, even we are learning and we are enjoying every bit of this. So we really hope that all of you are learning and gaining from this. और कल आप मत भूलिए कि कल जो है we have a interaction session of question and answers. और मैं ये बताता हूँ कि please come prepared with a lot of questions. We are coming prepared to answer every question of yours. अगर हमारे को question आपको, if we cannot answer the question, then you are giving us homework. हमारे लिए आप homework दे रहे, हम वापस जाके पढ़ के we will get back to you. But we are expecting some good questions tomorrow. All are invited. Please join us tomorrow and enjoy the topic and ask every question. And I hope we will be able to answer every question of yours. Thank you once again. Thank you, Sports Authority of India. Thank you, Cycling Federation of India. And now I hand over to Vinay to close. Thank you once again. And you can also see the next week's program. We have some excellent teachings next week. So I request all of you, keep in touch and just look at your screen now. You have some great teachings next week as well. You will not regret joining this platform. Thank you once again. Okay. सर, मैं सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूँगा, एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी लोगों से कि एटलीस्ट जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, बिकॉज ये फेसबुक पे लाइव जा रहा है और आप अगर वीडियो ऑन नहीं करते तो सिर्फ आपका नाम ही दिखता है वहाँ पे, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता। जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि स्क्रीन सिर्फ ब्लैक हो जाता है, सिर्फ आपका नाम ही दिखता है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चंस पूछें। एंड मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा अटेंड करने के लिए, और कल हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू वेरी मच।